رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله مداد كلماته اللهم رزقا طيبا علما نافعا وعملا متقبلا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا 12واں پارہ کا ترجمہ شروع کرتی اور کوئی رزق کھانے والا جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کا چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط اور مندرج ہے وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ دیکھے تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت جس میں بعث کی خبر ہے کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے اگر تھوڑے دنوں تک مراد دینوی زندگی ہے ان سے عذاب موعود کو ملتوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں تو بطور انکار و استہزاء کے کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کون چیز روک رہی یاد رکھو جس دن وقت موعود پر وہ عذاب ان پر آ پڑ گیا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے ان کو آ گھیرے گا اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو نامید اور ناشکر ہو جاتا اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دے تو کہنے لگتا ہے میرا سب دکھ دور و رخصت ہوا اب کبھی نہ ہوگا بس وہ اترانے لگتا ہے سیخی بگانے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں بعض کو کہ وہ تبلیغ ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا چالتا کیوں نہیں آیا آپ تو ان کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں اور یہ پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو اللہ ہی ہے کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا یعنی کفار کہتے تھے قرآن شریف کے بارے میں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا اسی کا جواب اللہ تعالیٰ دے آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی جیسی 10 صورتیں ہی جو تمہاری بنائی ہوئی لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا کہ اس کی مثل بنا لاؤ نہ کر سکیں گے تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کی علم اور قدرت سے اترا ہے یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیوی کی منافعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو اس دنیا میں
ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بخبر دوزخ کا کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے اللہ جن من النار، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا. اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے. کیا منکر قرآن ایسے شخص کے برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہے، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو ایک کام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے اور رحمت ہے. ایسے لوگوں کو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جو شخص دوسری فرقوں میں سے قرآن کا انکار کرے گا تو وہ دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے. کافر کا یہی حال ہے. سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے. لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے، اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. ایسے لوگ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے کے گواہ فرشتے علی الاعلان یوں کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائے تھی. سب سن لو کہ ایسے ظالم پر خدا کی زیادہ لعنت ہے جو کہ اپنے کفر و ظلم کے ساتھ اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے. اس راہ میں کجی اور شبہات نکالنے کی تلاش فکر میں رہا کرتے تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے. یہ لوگ تمام زمین کے تختہ پر بھی خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا کہ اگر کے گرفتاری کے بعد چھڑا لیتا. ایسوں کو اور اسے دونی سزا ہوگی. یہ لوگ نہ سن سکتے تھے، نہ غایت انا سے راہ حق کو دیکھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے آج ان سے سب غائب اور گم ہو گئے، کوئی بھی تو کام نہ آیا. بس لازمی بات ہے کہ آخرت میں زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے، ایسے لوگ اہل جنت ہے اور اس میں ہمیشہ رہا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. دونوں فریق مذکورین مومن و کافر کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو اندھا بھی اور بہرا بھی ہے، ایک شخص ہو کہ دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو، جس کو سمجھنا بہت آسان ہو. کیا دونوں شخص حالت میں برابر ہے؟ کافر مومن کی مثال اللہ تعالیٰ دین ہے. کیا تم اس تفاوت کو سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا. میں تم کو اور در صورت عبادت غیر اللہ کے صاف ڈراتا ہوں. میں تمہارے حق میں بغیر تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ جواب میں کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہمیں بالکل ذیل ہے، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے. پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہوا ہے، اور ہم تم لوگوں میں یعنی تم میں اور مسلمانوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں. کیا ہم اس دعویٰ دلیل کو تمہارے گلے مر دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ اور اتنی بات اور زیادہ فرمائی کہ اے میری قوم میں تم سے اس
तबलीग पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मा, और मैं तो ईमान वालों को निकालता नहीं, क्योंकि ये लोग अपने रब के पास इज्जत व मकबूलियत के साथ जाने वाले हैं। लेकिन वाकई मैं तुम लोगों को देखता हूँ कि खामखा की जहलत कर रहे हो, आप बेढंगी बातें कर रहे हो, और मेरी काम बिलफर्ज व तकदीर, अगर मैं इनको निकाल भी दूँ तो ये मतलब मुझको खुदा की गिरफ्त से कौन बचाएगा। क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के तमाम खजाने हैं, न मैं हूँ कि मैं तमाम गैब की बातें जानता हूँ, ये न कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। जो लोग तुम्हारी निगाहों में हकीर हूँ, मैं इनकी निस्बत तुम्हारी तरह नहीं, ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला हरगिज इनको सवाब न देगा। इनके दिल में जो कुछ है इसको अल्लाह ही खूब जानता है। मैं तो अगर ऐसी बात कह दूँ तो इस सूरत में मैं सितम ही कर दूँ। वो लोग कहने लगे कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुमसे बहस कर चुके, फिर भी बहुत कर चुके, सो अब हम बहस वहस नहीं करते। जिस चीज़ से तुम हमको धमकाया करते हो, अजाब आ जाएगा, वो हमारे सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला बशर्तिया कि इसको मंजूर हो तुम्हारे सामने ला देगा। इस वक्त फिर तुम इसको आजिज़ न कर सकोगे, और मेरी खैर खाही तुम्हारे काम नहीं आ सकती। गो मैं तुम्हारी कैसी ही खैर खाही करना चाहूँ, जबकि अल्लाह ही को तुम्हारा गुमराह करना मंजूर हो। वही तुम्हारा मालिक है और इसी के पास तुमको जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि उन्होंने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह ये कुरान तराश लिया है? आज आप जवाब में फरमा दीजिए कि अगर बिलफर्ज मैंने तराशा होगा तो मेरा ये जुर्म मुझ पर आयद होगा, तुम मेरे जुर्म से बरी ज़िम्मा रहोगे और मैं तुम्हारे इस जुर्म से बरी ज़िम्मा रहूँगा। और नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी गई कि सिवाय इनके जो इस वक्त तक ईमान ला चुके हैं, और कोई नया शख्स तो पानी कम में से ईमान न लावेगा। सो जो कुछ ये लोग कुफ्र व इस्तेहज़ा कर रहे हैं, इस पर कुछ गम न करो, और तुम हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो, और मुझसे काफिरों के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना। वो सब गर्क किए जाएंगे। और वो किश्ती तैयार करने लगे। जब कभी इनकी कौम के किसी रईस गरबा का इन पर गुजर होता तो उनसे हंसी करते। आप फरमाते कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम तुम पर भी हंसते हैं, जैसा तुम हम पर हंसते हो। सो अब तुमको मालूम हो जाता है कि वो कौन सा अक्षर जिस पर ऐसा अजाब आया चाहता है जो इसके रुसवा कर देगा, और वो इस पर दायमी अजाब नाजिल होगा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म अजाब का करीब आ पहुँचे और तनूर यानी ज़मीन से पानी उबलना शुरू हुआ, हमने नूह सलाम से फरमाया कि हर एक किस्म में से एक एक नर और एक एक मादा यानी एक जोड़ा यानी दो अदद इस पर चढ़ा लो, और अपने घर वालों को भी इस्तिस्ना इसके जिस पर हुक्म नाफिज हो चुका, दूसरे ईमान वालों को भी सवार कर लो। बखबर कलील आदमियों के उनके साथ यानी इनमें पर कोई ईमान न लाया था। नूह अलैहिस्सलाम फरमाया कि इस किश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना ठहरना अल्लाह ही के हुक्म से है। बिल यकीन मेरा रब गफूर रहीम है। और वो किश्ती इनको लेकर पहाड़ जैसी मौजों में चलने लगी। नूह अपने एक सगे या सौतेले बेटे को पुकारा। वो अलहदा मकाम पर था कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत हो। वो कहने लगा, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझको पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म यानी कहर से कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन जिस पर वही रहम करे। वो दोनों के बीच में एक मौज हायल हो गई। बस वो भी मिस्र दूसरे काफिरों के गर्क हो गया। हुक्म हुआ कि ऐ ज़मीन अपना पानी निकल जाए, ऐ आसमान थम जा, और पानी घट गया। किस्सा खत्म हुआ। वो किश्ती जूदी पहाड़ पर आ ठहरिया। कह दिया गया कि काफी लोग रहमत से दूर, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा ये बेटा मेरे घर वालों में से आपका वादा बिल्कुल सच्चा, आप अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह ताला ने
इरशाद फरमाया कि ऐ नूह, ये सब तुम्हारे घर वालों में से नहीं, ये तबाहकार है। सो मुझसे ऐसी चीज़ की दरख्वास्त मत करो जिसकी तुमको खबर नहीं। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि तुम नादान न बन जाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं इस अम्र से आपकी पनाह मांगता हूँ कि आपसे ऐसे अम्र की दरख्वास्त करूँ जिसकी मुझको खबर न हो, और अगर आप मेरी मग़फ़िरत न फरमाएंगे और मुझ पर रहम न फरमाएंगे तो मैं बिल्कुल ही तबाह हो जाऊंगा। कहा गया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, उतरो, हमारी तरफ से सलाम और बरकतें लेकर जो तुम पर नाजिल होंगी और इन जमातों पर जो कि तुम्हारे साथ है। बहुत सी ऐसी जमातें भी होंगी, उनको हम चंद रोज ऐश देंगे, फिर उन पर हमारी तरफ से सजाए सख्त वाक़ होगी। ये किस्सा min जमला अखबार गैब के हैं जिसको हम वही के जरिए से आपको पहुँचाते हैं। इसको इसके किब न आप जानते थे न आपकी कौम। सो सब्र कीजिए, यकीनन नेक अंजामी मुत्तकियों ही के लिए। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल है। तुम इस बुत परस्ती के तकाद में महज मुफ्तरा हो। आए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ मुआवजा नहीं मांगता। मेरा मुआवजा तो सिर्फ इस अल्लाह के ज़िम्मा है जिसने मुझको पैदा किए। फिर क्या तुम नहीं समझते? और आए मेरी कौम, तुम अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर इसकी तरफ मुतवज्जह रहो और तुम पर खूब बारिश से बरसाएगा, तुमको और कुव्वत देगा, देकर तुम्हारी कुव्वत में तरक्की कर देगा। और मुजरिम रहकर एराज मत करो। इन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ हूद, आपने हमारे सामने कोई दलील तो पेश ही नहीं की। हम आपके कहने से तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, हम किसी तरह आपका यकीन करने वाले नहीं। हमारा कौल तो ये है कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको किसी खराबी में मुब्तला कर दिया। हूद ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अलल ऐलान अल्लाह को गवाह अलल ऐलान अल्लाह को गवाह कहता हूँ, तुम भी सुन लो और गवाह रहो कि मैं इन चीज़ों में से बेजार हूँ जिनकी तुम खुदा के सिवा शरीक करार देते हो। सो तुम सब मिलकर मेरे साथ दाव घाट कर लो, फिर मुझको ज़रा मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है जो मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है। जितने रोज ज़मीन पर चलने वाले हैं सबकी चोटी उसने पकड़ रखी है। यकीनन मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है। फिर अगर तुम फिरे रहोगे तो मैं तो जो पैगाम देकर मुझको भेजा गया है वो तुमको पहुंचा चुका हूँ, और तुम्हारी जगह मेरा रब दूसरे लोगों को ज़मीन में आबाद कर देगा। इसका तुम पर कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, बल्कि यकीन मेरा रब हर शय की निगहदाश्त करता है। जब हमारा हुक्म अजाब के लिए पहुंचा तो हमने हूद को और जो उनके हमरा अहले ईमान थे उनको अपनी अनायत से बचा लिया, उनको एक सख्त अजाब से बचा लिया। ये कौम आद थी जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, इसके रसूलों का कहना न माना। तमाम तरह ऐसे लोगों के कहने पर चलते रहे जो जालिम और जिद्दी हैं थे। इस दुनिया में भी लानत उनके साथ रही और क़यामत के दिन भी। खूब सुन लो, हम कम आद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। खूब सुन लो, रहमत से दूरी हुई आद को जो कि हुद की कौम थी, और हमने समूद के पास उनके भाई सालह को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। इसने तुमको ज़मीन के मादा से पैदा किया, उसने तुमको इसमें आबाद किया, तो तुम अपने गुनाह से इससे माफ़ कराओ, यानी ईमान लाओ, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा रहो। बेशक मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। वो कहने लगे कि ऐसा अल्लाह, तुम तो इससे किबला में होनहार थे, क्या तुम हमको इन चीज़ों की इबादत करने से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बड़े करते आए हैं? जिस दिन की तरफ तुम हमको बुला रहे हो वाकई हो तो उसकी तरफ से बड़े शुबह में है, जिसने हमको तरद्दुद में डाल रखा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला ये तो बताओ कि अगर मैं अपने रब के जानिब से दलील पर हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ से रहमत यानी नबुव्वत अता फरमाई हो,
सो अगर मैं खुदा का कहना न मानूं तो फिर मुझको खुदा से कौन बचाएगा। तो तुम सरासर मेरा नुकसान कर रहे हो। और अपने आए मेरी कौम, तुम जो मुजज़्ज़ह चाहते हो सो ये उठनी है अल्लाह की, जो तुम्हारे लिए दलील है सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा कर इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको फौरी अजाब आ पकड़े। सो उन्होंने इसको मार डाला। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने घरों में 3 रोज और बसर कर लो, और वो ऐसा वादा जिसमें जरा झूठ नहीं। सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने सालह को, जो उनके हमरा अहले ईमान थे, इसको अपने अनाज से बचा लिया, इस दिन की बड़ी रुसवाई से बचा लिया। बेशक आपका रब बड़ा ही कुव्वत वाला, गलबा वाला है। आज इन जालिमों को एक नारा ने आ दबाया जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे इन घरों में कभी बसे ही न थे। खूब सुन लो, समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। खूब सुन लो, रहमत से समूद को दूरी हुई। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बसारत लेकर आए। उन्होंने सलाम किया, उन्होंने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया। फिर वो देर नहीं लगाई कि एक तला हुआ बछड़ा लाए। सो जब उन्होंने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ इस खाने तक नहीं बढ़ते तो उनसे मुतवस्सी हुए और उनसे दिल में खौफ ज़दा हुए। वो फरिश्ते कहने लगे, डरो मत, हम कौम लूत की तरह भेजे गए हैं। उनकी यानी इब्राहिम की बीवी खड़ी थी, बस हंसी। सो हमने बसारत दी उनको इसहाक किया। इसहाक से पीछे याकूब की कहने लगी, हाय खाक पड़े, अब मैं बच्चा जनूंगी बुढ़िया होकर। मेरे मियाँ हैं बिल्कुल बूढ़े। वाकई ये भी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा के कामों में ताज्जुब करती हो, और खुसूसन इस खानदान के लोगों तुम पर तो अल्लाह की खास रहमत, उसकी बरकतें, बेशक वो तारीफ के लायक बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो खौफ ज़ायल हो गया, उनकी खुशी की खबर मिली, तो हम से लूत के कौम के बारे में जदाल करना शुरू किया। वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम तब रहीमुल मिजाज रकीकुल कल्ब थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुंचा है, उन पर जरूर ऐसा अजाब आने वाला है जो कि किसी तरह हटने वाला नहीं। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो यानी लूत उनकी वजह से मगमूम हुए और उनके आने के सबब तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बहुत भारी है। उनको कौम उनके पास दौड़ी हुई आई। वो पहले से नामाकूल हरकतें ही किया करते थे। यानी लूत फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बहू बेटियां जो तुम्हारे घरों में मौजूद है वो तुम्हारे लिए अच्छी खासी हैं। सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझको फजीहत मत करो। क्या तुम में कोई भी माकूल आदमी है? भला मास नहीं। वो लोग कहने लगे, आपको तो मालूम है कि हमको आपकी बहू बेटियों की ज़रूरत है। आपको तो मालूम है कि जो हमारा मतलब वो यानी लूत फरमाने लगे, क्या खूब होता अगर मेरा तुम पर कुछ जोर चलता या मैं किसी मजबूत पाया की पनाह पकड़ता। वो फरिश्ते कहने लगे, ऐ लूत, हम तो आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप तक हरगिज उनकी रसाई न होगी। सो आप रात के किसी हिस्सा में अपने घर वालों को चलिए और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे। हाँ, मगर आपकी बीवी न जाने जाएगी, इस पर भी वही आफत आने वाली है जो और लोगों पर आवेगी। उनके वादा का वक्त सुबह का वक्त है, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं? सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इस जमीन को उलट कर इसका ऊपर का तख्ता को नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर। इस जमीन पर खंगर के पत्थर झाड़ू बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर आपके रब के पास का खास निशान भी था। ये बस्तियां इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। हमने ये मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, "है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम नाप और तौल में कमी मत किया करो। मैं तुमको फरागत की हालत में देखता हूँ और मुझको तुम पर अंदेशा ऐसे दिन के अजाब का जो नवाए मसाइब का जामा होगा। आया मेरी कौम, तुम नाप तौल को पूरी पूरी किया करो और इंसाफ से और लोगों का इन चीज़ों में नुकसान मत किया करो और ज़मीन में फसाद करते हुए हद से मत निकलो।
अल्लाह का दिया है, जो कुछ बच जावे वो तुम्हारे लिए बदजे जहाँ बेहतर। अगर तुमको यकीन आवे यार मैं तुम्हारा पहरा देने वाला तो नहीं हूँ। वो लोग कहने लगे, ऐ शुएब क्या तुम्हारा तकद्दुस तुमको तालीम कर रहा है कि हम इन चीज़ को छोड़ दे जिनकी परस्तिश हमारे बड़े करते आए हैं, या इस बात को छोड़ दे कि हम अपने माल में जो चाहें तसरुफ करें। वाकई ये हैं बड़े अक्लमंद दीन पर चलने वाले। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम भला ये तो बतला, अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पढ़ूँ और इसने मुझको अपनी तरफ से एक उम्दा दौलत यानी नबुव्वत दी हो तो फिर कैसे तबलीग न करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बरखिलाफ इन कामों को करूँ जिनसे तुम को मना करता हूँ। मैं तो इस्लाह चाहता हूँ, जहाँ तक मेरे इम्कान है में है मुझको जो कुछ तौफीक हो जाती है सिर्फ अल्लाह की मदद से इसी पर भरोसा रखता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। ऐ मेरी कौम, मेरी जिद तुम्हारे लिए इसका बास न हो जाए कि तुम पर भी इसी तरह की मुसीबतें आ पड़ी जैसी कौम नूह या कौम हूद या कौम सालह पर पड़ी थी और कौम लूत तो अभी तुमसे बहुत दूर जमानों में नहीं हुई। या तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ़ कराओ फिर इसकी तरफ मतवज्जा हो। भला शक मेरा रब बड़ा मेहरबान बड़ी मोहब्बत वाला। वो कहने लगे कि ऐ शुएब, बहुत सी बातें तो हमारी कही हुई हमारे समझ में नहीं आती। हम तुमको अपने में कमज़ोर देख रहे हैं। अगर तुम्हारे ख़ानदान के पास न होता तो हम तुमको संसार कर चुके होते और हमारी नज़र में तुम्हारी तो कुछ तौक़ीर ही नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से भी ज़्यादा बातौक़ीर है? इसको तुमने पसे पुष्ट डाल दिया। यकीनन मेरा रब तुम्हारे सब अमाल को अहाता किए हुए है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अपने ख़ास तौर पर अमल कर रहा हूँ। अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि वो कौन शख्स है जिस पर अजाब आया चाहता है, जो इसको रुसवा कर देगा। वो कौन शख्स है जो झूठा था। तुम भी मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूँ। आज जब हमारा हुक्म पहुँचा, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को जो उनकी हमराही में अहले ईमान थे उनको अपनी अनायत से बचा लिया। इन जालिमों को एक सख्त आवाज़ ने आ पकड़ा, सो अपने घर के अंदर औंधे गिरे रह गए और मर गए जैसे इन घरों में बसे ही न थे। खूब सुन लो कि मदयन को रहमत से दूरी हुई, जैसा समूद रहमत से दूर हुए। तो हमने मूसा को अपने मोजज़ात और दलील रोशन देकर फिरौन उसके सरदारों के पास भेजा। सो वो लोग फिरौन की राय पर चलते रहे और फिरौन की राय कुछ सही न थी। वो क़यामत के दिन अपने कौम के आगे आगे होगा, फिर उनको दोजख में जा उतारेगा और वो बहुत ही बुरी जगह उतरने की जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे। इस दुनिया में भी लानत उसके साथ रही और क़यामत के दिन भी बड़ा नाम है जो उनको दिया गया। ये गारत शुदा बस्तियों के बाज़ हालात है जिनको हम आपसे बयान करते। सो बाज़ बस्तियां तो इनमें अब भी कायम है, आबाज का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन उन्हें खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। सो उनके वो माबूद जिनको वो खुदा को छोड़कर पूजते थे उनको कुछ फ़ायदा न पहुंचा सके। जब आपके रब का हुक्म आ पहुँचा, उल्टा उनको नुकसान पहुंचा। और आपके रब की दारोगिर ऐसी है कि जब वो किसी बस्ती पर दारोगिर करता है जबकि वो जुल्म किया करते हैं, भला सुबह इसकी दारोगिर बड़ी अलम रसा और सख्त है। इन क़यामत में इस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखरत के अजाब से डरता है। वो ऐसा दिन होगा कि इसमें तमाम आदमी जमा किए जाएंगे, वो सबकी हाजिरी का दिन है। हम इसको सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए मुलतवी किए हुए हैं। जिस वक्त वो दिन आएगा कोई शख्स बदुन इसकी यानी खुदा की इजाज़त के बाद तक न कर सकेगा। फिर उनमें बाजे तो सकी होंगे और बाजे सईद होंगे। जो लोग सकी वो दोजख में ऐसे हाल से होंगे कि इनमें इनको चीखो पुकार अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार पड़ी रहेगी और हमेशा हमें सब इसमें रहेंगे जब तक आसमान ज़मीन कायम है। हाँ, मगर इसके रब ही को निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है। आपका रब जो कुछ चाहे उसको पूरा कर सकता है। रह गए वो लोग जो सईद हैं, जो जन्नत में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमेशा हमेशा को रहेंगे जब तक आसमान ज़मीन कायम है। हाँ, अगर आपके रब को निकालना मंजूर हो तो दूसरी बात है वो गैर मुनक़ता अतिया होगा। सो
جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا صبح نہ کرنا. یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. ہم یقیناً ان کا حصہ عذاب کا ان کو بروز قیامت پورا پورا بے کم داست پہنچا دیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو اس میں اختلاف کیا گیا. اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. ایسے لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. بالیقین سب کے سب ایسے ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا اور بالیقین ان کے سب اعمال کی پوری پوری خبر رکھتا ہے. تو آپ جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے. وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہے دائرہ سے ذرا مت نکلو. یقیناً ان تو سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف مت جھکو کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے یا خدا کے سوا کوئی تمہارا رفاقت کرنے والا نہ ہو. پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو. آپ نماز کی پابندی رکھے. دن کے دونوں سروں پر رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو. یہ بات نیک نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے. آج صبر کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو امتیں تم سے پہلے ہو کر گزرے ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک میں فساد یعنی کفر سے بچا پھیلانے سے منع کرتے. مخبر چند آدمیوں کے جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا. جو لوگ نافرمان تھے وہ ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے جرائم کے خوگر ہو گئی. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے ان کے رہنے والے اسلام میں لگے ہو. اور اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا یعنی سب کو مومن بنا دیتے. آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو اور اس کا اختلاف کا غم نہ کیجیے کیونکہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا. آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی میں جہنم کو جنات سے انسان سے دونوں سے بھروں گا. اللہ جن اور پیغمبروں کے قصوں میں یہ ہم سے یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راستہ ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. یاد دہانی رہے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجیے کہ تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو ہم بھی عمل کر رہے ہیں. تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے. سب امور اسی طرف رجوع ہوں گے تو آپ اسی کی عبادت کیجیے اسی پر بھروسہ کیجیے. اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو. اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ آتے ہیں جو ایک کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو. ہم نے یہ جو قرآن آپ کے پاس بھیجا اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں یعنی کہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص سے بیان کیا ہے. خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں. اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے. وہ وقت قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے 11 ستارے سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا پس وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے. بلا صبح شیطان آدمی کا صریح دشمن ہے. اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام کامل کرے گا جیسا کہ اس کی تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے. واقعی تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا ہے. یوسف علیہ السلام کیا ان کے بھائیوں کی قصہ میں خدا کی قدرت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہے. ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں. واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہے
या तो यूसुफ को कत्ल कर डालो या इनको किसी सरजमीन में डाल आओ, तो तुम्हारे बाप का रुख खालिस तुम्हारी तरफ हो जाएगी। यानी शैतान ने बकाया, आज तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो, यानी उनके भाई ने, इनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दो ताकि उनको कोई राह चलता निकाल ले जाए, अगर तुमको करना है। सबने कहा हाँ कि अब्बा, इसकी क्या वजह कि यूसुफ के बारे में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उनके खैर का है। आप इनको कल के रोज़ हमारे साथ भेजिए कि वो ज़रा खेले कूदे और हम इनकी पूरी हिफाजत रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको ये बात गम में डालती है कि तुम इसको ले जाओ, और मैं ये अंदेशा करता हूँ कि इसका कोई भेड़िया खा जाए, या तुम इससे बेखबर रहो। बोले कि अगर इनको कोई भेड़िया खा जावे तो, और हम एक जमात की जमात मौजूद हो, तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने कहा। सो जब उनको ले गए, आज सब ने पुख्ता आज़म कर लिया कि इनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दे। हमने उनके पास वही भेजी कि तुम इन लोगों को ये बात जतला दोगे और ये पहुँचानेंगे भी नहीं। वो लोग अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए पहुँचे, कहने लगे कि अब्बा, हम सब तो आपस में दौड़ने में लग गया, यूसुफ को हमने अपनी चीज बस्त के पास छोड़ दिया, बस एक भेड़िया उनको खा गया। आप तो हमारा काहे को यकीन करने लगे, गो हम कैसे ही सच्चे हों। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो सब्र ही करूँगा। फसब्रुन जमील, सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा। जो बातें तुम बतलाते हो उनमें अल्लाह ही से मदद करेगा। और एक काफिला आ निकला, उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते भेजा, उसने अपना डूल डाला, कहने लगा कि ऐ भाई, अपनी खुशी की बात है, ये तो अच्छा लड़का निकल आया, इनको माल तिजारत से करार देकर छुपा लिया, और अल्लाह को उन सब की कारगुजारी मालूम थी, और इनको बहुत ही कम कीमत को बेच डाला, यानी गिनती के चंद दिरहम के एवज। वो लोग कुछ उनके कदरदान तो थे ही नहीं। जिस शख्स ने मिस्र में इनको खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको तो खातिर से रखना कि आजीब है, हमारे काम आवे, या हम इसको बेटा बना ले। और हमने इसी तरह यूसुफ को इस सरजमीन में खूब कुव्वत दी ताकि हम इनको ख्वाबों की ताबीर देना बतला दे। अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। और जब वो अपने जवानी को पहुँचे, हमने उनको हिकमत और इल्म अता फरमाया। हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। जिस औरत के घर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, उनके इनसे अपना मतलब हासिल करने को इनको फुसलाने लगी और सारे दरवाजे बंद कर दिए। कहने लगी कि आ जाओ, तुमसे ही कहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो भारी गुनाह, अल्लाह बचाए। दूसरे वो मेरा मरब्बी है कि मुझको कैसी अच्छी तरह रखा, ऐसी हक फरामोश को फलाह नहीं हुआ करती। इस औरत के दिल में तो इनका ख्याल जम ही रहा था, इनको भी इस औरत का कुछ ख्याल हो चला था। अगर अपने रब की दलील को उन्होंने न देखा होता तो ज्यादा ख्याल हो जाता, अजीब न था। इसी तरह हमने उनको इल्म दिया ताकि वो उनसे सगीरा और कबीरा गुनाह को दूर रखे, क्योंकि वो हमारे बरगजीदा बंदों में से थे। और ये दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ को दौड़े। इस औरत इनको कुत्ता पीछे से फाड़ डाला। वो दोनों ने इस औरत के शौहर को दरवाजे के पास पाया। औरत बोली कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे, इसकी सजा बखबर इसके और क्या है कि वो जेल खाना भेजा जाए और कोई दर्दनाक सजा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फुसलाती थी। इस वक्त औरत के खानदान में से एक गवाह शहादत दी कि उनका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, और ये झूठे। अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी, और ये सच्चे। सो जब उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, कहने लगा कि ये तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकी यहाँ गजब ही की है। ऐ यूसुफ, इस बात को जाने दो, और ऐ औरत, तू अपने कसूर की माफ़ी मांग, बेशक सराता तू ही कसूरवार है। चंद औरतों ने जो कि शहर में रहती थी,
ये बात कही कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को उससे अपना मतलब हासिल करने के वास्ते फुसलाती है। इस गुलाम का इसके दिल में जगह कर गया है, हम तो इसको सरी गलती में देखते हैं। सो जब उस औरत ने इन औरतों की बदगोई सुनी तो किसी के हाथ इनको बुला भेजा कि तुम्हारी दावत है इनके वास्ते। चंद मसनद तकिया लगाया, हर एक को इनमें से एक चाकू दे दिया। ये महज बहाना था, असली गर्ज ये थी कि हवास बाख्ता होकर हाथ जख्मी कर ले। और यूसुफ से कहा कि जरा उनके सामने तो आ जाओ। ये समझ कर के कोई सही गर्ज होगी बाहर आ गए हो। औरतों ने जो उनके देखा तो उनके जमाल से हैरान रह गए। उन पर ऐसी बदहवासी तारी हुई कि अपने हाथ काट ली, कहने लगी हाशा लिल्लाह, ये शख्स आदमी हरगिज नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। बोली वो शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा भला कहती थी कि अपने गुलाम को चाहती है, और वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की ख्वाहिश की थी, मगर ये पाक साफ रहा। अगर आइंदा भी मेरा कहना नहीं करेगा तो बेशक जेल खाना भेजा जाएगा, बेइज्जत भी होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मेरे रब, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझको बुला रही हैं इससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसंद है, और अगर आप इनके दाव पेच को मुझसे दफा न करेंगे तो मैं इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानी का काम कर बैठूंगा। सो इनकी दुआ उनके रब ने कबूल किया, उन औरतों के दाव पेच को उनसे दूर रखा। बेशक वो बड़ा सुनने वाला है, बड़ा खूब जानने वाला। फिर मुख्तलिफ निशानियां देखने के बाद इन लोगों को यही मसलहत मालूम हुआ कि उनको एक वक्त तक कैद में रखे, और उनके यानी यूसुफ के साथ और भी दो गुलाम कैद खानों में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा कि मैं अपने को ख्वाब में देखता हूँ कि शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा मैं अपने को इस तरह देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियां लिए जाता हूँ, और इनमें से परिंदे खाते हैं। हमको इस ख्वाब की ताबीर बतलाई, आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खाना तुम्हारे पास आता है, जो कि तुमको खाने के लिए मिलता है, मैं इसके आने से पहले इसकी हकीकत तुमको बतला दिया करता हूँ। ये बतला देना इस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फरमाया है। मैंने तो इन लोगों का मजहब छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, वो लोग आखिरत के भी मुनकिर है। मैंने अपने बाप दादों का मजहब अख्तियार कर रखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम। हमको किसी तरह जेबा नहीं कि अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक करार दें। ये अकीदा तौहीद हम पर और दूसरे लोग पर खुदा ताला का एक फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए कैद खाना के दोनों रफ़ीक़ों, मुतफरिक माबूद अच्छे या एक माबूद बरहक जो सबसे ज़बरदस्त व अच्छा, तुम लोग तो खुदा को छोड़कर सिर्फ चंद बेहकीकत नामों की इबादत करते हो जिनको तुमने या तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया है। खुदा ताला ने उनकी कोई दलील भेजी नहीं, हुक्म खुदा ही का है। उसने ये हुक्म दिया है कि बखबर इसके और किसी की इबादत मत करो, यही सीधा तरीका, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद खाना के दोनों रफीकों, तुम में एक तो बरी होकर अपने आका को शराब पिलाया करेगा और दूसरा सूली दिया जाएगा, इसके सर को परिंदे खाएंगे। जिस बारे में तुम पूछते थे उसी तरह मुकद्दर हो चुका है। आज जिस शख्स की रिहाई का गुमान था उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी तज़किरा करना, एक शख्स बेकसूर कैद है। इसने वादा कर लिया, फिर इसको अपने आका के सामने तज़किरा करना शैतान ने बुला दिया। तो कैद खाना में और भी चंद साल इनका रहना हुआ। बादशाह ने कहा कि मैं देखता हूँ कि 7 गाय फरब हैं जिनको 7 लागर गाय खा गई, 7 बाले सब्ज हैं, उनके अलावा 7 और हैं जो कि खुश्क हैं। ऐ दरबार वालों, अगर तुम ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझको जवाब दो। वो लोग कहने लगे, यूं ही परेशान ख्यालात हैं, हम लोग ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते। वह इन मज़कूरा कैदियों में से जो रिहा हो गया था उसने कहा कि मुद्दत के बाद इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वसीयत का ख्याल आया कि मैं इसकी ताबीर की खबर ला देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दीजिए। और कैद खाना में पहुँचा है यूसुफ एसिड के मुजस्सम, आप हम लोगों को इस ख्वाब का जवाब यानी ताबीर दीजिए कि 7 गाय मोटी हैं, इनको 7 दुबली गाय खा गई, 7 बालें हरी हैं, इसके अलावा 7 खुश्क है, ताकि मैं इन लोगों के पास लौट कर जाऊँ।
تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو اس کو بال ہی میں رہنے دینا تاکہ گھن نہ لگ جائے۔ ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے نکال لینا، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جو کہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا جو رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی۔ اس میں سب جو ابھی سیرہ بھی نچوڑو گیا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا، آپ نے فرمایا تو اپنے سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ کہا کہ تمہارا کیا واقعہ جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی؟ عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی برائی کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی، میں نے ہی ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، آپ بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہتمام محض اس وجہ سے ہے تاکہ اس کو یعنی عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست درازی نہیں کیا، یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو فریب کرنے نہیں دیتا۔ 12واں پارہ ختم ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔